Hello everyone. Now we are going to solve the board exam paper 2023 and 2024. Okay. So in the whole paper is about 60 marks. So in the first part, so we are going to solve the through section wise or serial wise. So in first section, first question is express 360 as product of prime numbers or prime factors. Solution 360 as it is from the question. Now we know the tables, we know the method of factorization. Okay, so 3 ones are 3, 3 twos are 6, then 0, 3 fours are 12, 0, 2 twos are 4, 0, 2 tens are 20, and 2 fives are 10, 5 ones are 5. We get the prime factors 3, 3, 2, 2, 2, and 5. So we can write as 3 multiply by 3 multiply by 2, 2 and 2. How many times are they? 2, 1, 2, 3 times. 1, 2, 3 times into 5 is equals to 360. Okay, 3 power 2. Here is 2 times now. Bases are equal. Power should be added. 3 power 2 multiply by 2 power cube. Okay, into 5 is equals to 360. It is the solution of first question. Express 360 as a prime products of prime factors. These are the prime factors of 360. Okay, first question is over. Now come to the second question. Is the pair of linear equation equation is 3x minus 5y is equals to 7 and 6x minus 10y is equals to 13 are inconsistent. Justify your answer. Okay, solution. From the question, we can take two equations. These are the two linear equations. 3x minus 5y is equals to 7 and 6x minus 10y is equals to 13. So 3x minus 5y is equals to 7 and 6x minus 10y is equals to 13. Here we exclude the terms from these equations. So coefficient of x is 3, coefficient of y is minus 5, and constant term is 7. Coefficient of x is 6, coefficient of y is minus 10, and a constant term is 13. So a1 is 3, a2 is b1 is minus 5 and c1 is 7. Now from the next equation, a1 is 6 and a2 is 6, b2 is equals to minus 10 and c2 is equals to 13. There is a formula for inconsistent of pair of linear equation. That formula is a1 by a2 that equals to b1 by b2 that equals to c1 by c2 does not equals to c1 by c2. Inconsistent, so all terms are equal, but in inconsistent one single term is not equal. Okay, we will substitute these values in this equation. So a1 is equals to 3, then a2 is equals to 6. What is b1? Minus 5, c1 b2 minus 10 and c1 7 and c2 13. So 3 ones are 3, 3 twos are 6, minus minus get cancel, 5 ones are 5, 5 twos are 10. So we will get 1 by 2 is equals to 1 by 2 is equals to 7 by 13. Okay, these both terms are equal but not this term. So a1 by a2 is equals to b1 by b2 does not equals to c1 by c2. Therefore the given pair of linear equations are inconsistent. Okay, we justified our answer. Now come to our next question.
चलिए अब अपन तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन, a flag stands vertically on a ground from a point which is 15 meter. One second. (15 meter) away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of a tower is 45 degree. Draw suitable diagram for Tata. Look at the board. A flag pole stands vertically on a ground. एक है ना पोल है जो कि ग्राउंड पे है, उसके बाद में फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टावर के जहाँ पर पोल है, वो पोल ने मीन्स टावर, टावर के पास से जो पॉइंट है उसके आगे से है ना 15 मीटर दूर पे एक पॉइंट है जहां पर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, है ना. वहां टॉप वो पॉइंट पे ठहर के टावर या फिर पोल के टॉप पे दिख रहे, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री. तो ये जो डाटा है अपने पास, इससे अपने क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है. देखिए सोल्यूशन इसका, सबसे पहले गिवन लिख लो आप. इसमें से क्या क्या मिला अपने को, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री. ओके, एंड द डिस्टेंस इज 15 मीटर. डिस्टेंस कितना है अपने पास 15 मीटर. Distance is equals to 15 meter. Now the diagram is, suppose it is the tower. Suppose it is the tower. We will name as A and B. उसको अपन लोग नाम दे देंगे A and B. एक पॉइंट है जो कितनी मीटर दूर पे है, 15 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है जहां से टावर के टॉप पे देख रहे. 15 मीटर दूर यहाँ से यहाँ पर एक 15 मीटर दूर पॉइंट है. उसके बाद में यहाँ से कहाँ पर देख रहे अपना, टावर के टॉप पे देख रहे. ये टॉप ऑफ द टावर, ये बॉटम ऑफ द टावर है, और ये पॉइंट है. कितनी दूरी पे है पॉइंट, ये 15 मीटर की दूरी पे पॉइंट है. और यहाँ पर पॉइंट का नाम दे देंगे अपना C. सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका 45 डिग्री. और यहाँ से ठहर के देख रहे अपन, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन गया. सो टावर कितना हो गया आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री. डिस्टेंस कितना हो गया 15 मीटर. और डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होता है, A and C. डिस्टेंस क्या है आपका AC. एंड टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी है, या फिर टावर क्या है आपका A and B. A and B क्या है आपका टावर. ये डाटे को क्या करना था अपने को, डायग्राम में बताना था, बता दिए. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. अंडरस्टूड ना. ओके, now the question number 4 is, AOB is a diameter of a circle with center O, and AC is a tangent
to the circle at A. If angle BOC is equals to 130 degree, then find angle ACO. The diagram is, it is a circle with the center O. AOB is the diameter. Okay, AOB is the diameter, means A here, O here, and B here. AOB is the diameter of the circle and O is the center of the circle. एक tangent है, tangent AC. tangent मीन जो सर्कल को सिर्फ टच करके चले जाते हैं, सो क्या बोलते हैं टेंजेंट. और कहाँ पर है टेंजेंट? वो ए पे है. हो गया. और क्या है अपने क्वेश्चन में? टू सर्कल ए, इफ एंगल BO, सो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, एक्सटर्नल पॉइंट, जिसका नाम क्या दे देंगे आपका? सी. क्या नाम दे देंगे इसको? सी. तो BOC कितने डिग्री का आएगा एंगल? वो 130 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे से ऐसा यहाँ पर BOC या CO भी उतना ही होता है. यहाँ पर कितना है डिग्री का एंगल है? वो 130 डिग्री का एंगल है. तो अपने को मालूम क्या करना है इसमें? फाइंड ACO, यानी ACO यानी ये एंगल मालूम करना है अपने कितना डिग्री का है. नहीं मालूम अपने को, तो उसको क्या दे दिया पूरा? थीटा. थीटा मीन्स एंगल. तो एंगल क्या मालूम करना है? ACO. अपने को एक प्रॉपर्टी मालूम है, जो कि कभी भी एक सर्कल रहता, सर्कल को जब टैंजेंट टच करके जाता तो हमेशा याद रखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता. ये फिगर को थोड़ा सा इमेजिन करो कि ऐसा ठहरेवी है. जब उसको थोड़ा सा ठहरेवी से अगर इसको अरेंज करे ऐसा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रहता अपना. ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है अपने लिए? 90 डिग्री का एंगल है. ये एक मिल गया एंगल अपने को, और एक एंगल मिल गया. और एक प्रॉपर्टी है जो कि लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी. चलिए देखिए बोर्ड पे. AOB is a diameter of a circle with the center O and AC is the tangent to the circle at A. If angle BOC is equals to 130 degree, then find angle ACO. यहाँ पर हमें डायग्राम में देख लो, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है वो डायग्राम में से इन्फॉर्मेशन है. क्या एंगल BOC 130 डिग्री, यहाँ डायग्राम में 130 डिग्री है अपने पास. और आगे एंगल टैंजेंट AC. टैंजेंट AC है मतलब यहाँ पर कितना डिग्री रहता? हमेशा टैंजेंट जब सर्कल को टैंजेंट टच होता तो कितना डिग्री रहता होगा? 90 डिग्री का रहता है. ये 90 डिग्री अपने पास यहाँ पर टाइगर क्वेश्चन में नहीं है, पूरा लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपने को यूजफुल है आगे जाकर. तो अब यहाँ पर देखिए गिवन दैट लिख लो. AC इज क्या है? टैंजेंट. AC इज टैंजेंट एंड एंगल BOC इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. चलिए अब उसके बाद में हमने क्या करना है? लीनियर एंगल प्रॉपर्टी. अपने पास ये एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, अपने को एंगल थीटा मालूम करना है, यानी एंगल ACO, एंगल ACO अपने को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर एंगल नहीं मालूम तो उसको थीटा ले लिया पूरा. तो अब एंगल प्रॉपर्टी, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ये 130 डिग्री, एक स्ट्रेट एंगल जब होता है अपना, उसमें जब एक लाइन आती है तो ये दो एंगल्स को मिलाए तो 180 डिग्री होता है ना. एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर से एक लाइन टच होगी तो दोनों एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री. तो अपने पास एक एंगल है, कितना है? 180 डिग्री में 130. तो एक एंगल अपना 130 हो गया. दूसरा एंगल अपने पास है नहीं है, तो उसको अपन क्या रख लेंगे? कुछ भी x रख लो. ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया. ये 130 दे जाए क्या होता? प्लस 130 दे जाएगा माइनस 130. तो 180 में से 130 माइनस करो, x की वैल्यू क्या आती है आपको? 50. तो x कितने डिग्री का हुआ अपना? 50 डिग्री का हो गया. यानी ये जो एंगल है अपना यहाँ पर, ये एंगल कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है. ओके, अब ये एक एंगल मिल गया अपने को, ये एक एंगल मिल गया. अरे कौन सा फिगर है यहाँ से यहाँ तक? ट्रायंगल. कौन सा फिगर है? ट्रायंगल. फिर और एक प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फॉर ट्रायंगल. ट्रायंगल के तीन एंगल्स को प्लस किया तो कितना आता? 180 डिग्री. एक एंगल कितना है अपने पास? 90 डिग्री. दूसरा एंगल कितना है? 50 डिग्री. और तीसरा एंगल अपने पास C नहीं है. एंगल C अपने पास है नहीं है, तो एंगल C को एज इट इज रख दो 180 जैसे का वैसा. ये 90 प्लस 50 कितना होता? 140. तो 140 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये 140 प्लस उधर जाए क्या होता है?
माइनस 140, तो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, सो एंगल C इज अबाउट 40 डिग्री। तो अपने फिगर्स में से क्या मिला अपने को? एंगल C। एंगल C मीन्स एंगल ACO, देयरफॉर एंगल ACO दैट इक्वल्स टू 40 डिग्री। अंडरस्टूड? ये पूरा फिगर में से अपना सोल्यूशन है उतना ही। ना अब दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, which is the new chapter for 10th standard। ये चैप्टर पिछले क्लासेस में नहीं था, ये चैप्टर ये क्लास में है 10th क्लास में। तो उसका क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, देखिए एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ tan theta, in terms of tan theta। okay, so the solution is about sin theta को अपने को किसमें लिखना है? पूरा में tan theta में लिखना है। sin theta को पूरा किसमें लिखना है? अपने को tan theta में लिखना है। तो पहले अपने को मालूम ना tan theta के फॉर्मूले कितने हैं। तो सबसे पहले tan theta का एक फॉर्मूला है, tan theta इज इक्वल्स टू sin theta बाई cos theta। ओके, sin theta बाई cos theta। तो ये sin थीटा तो डिवाइड में इधर जाके क्या होता है? मल्टीप्लाई। डिवाइड में है ना, उधर जाके क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो tan थीटा दैट इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। सो वी गॉट sin थीटा इन LHS, सॉरी इन RHS, दिस इज एन LHS। अपने पास LHS में दोनों एक दो अलग अलग टर्म्स हो गए, बीच में इक्वेशन है, इधर से sin थीटा है, tan थीटा इनटू cos थीटा। तो पहले अपना थोड़ा सा टर्म्स को ट्रांसफर कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहती। sin थीटा को किसे बताना है? अपने को tan थीटा में बताना है पूरा में। तो sin थीटा तो अपने पास LHS में है, RHS में पूरे tan थीटा आना, मगर tan थीटा यहाँ पर नहीं आ गई। और एक एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है? cos थीटा। एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है? cos थीटा। यहाँ पर tan में रहना पूरी चीज, tan में है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? secant थीटा इज इक्वल cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosecant थीटा sec थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा। तो ये cos को हटाई क्या लिख सकते हैं अपना? 1 बाई sec थीटा हो गया। tan 1 जा tan, secant नीचे जैसे का वैसा हो गया। अभी भी tan में नहीं आया पूरा, पहले किस में था? इन्हें tan से sin cos था, मल्टीप्लाई में लेके tan और cos हो गया। cos को चेंज करे secant करे, secant में से अब यहाँ पे tan तो है, यहाँ पे भी tan होना है अपने को, मगर यहाँ पर है क्या? secant। अब secant को हटा के क्या करना है अपने को? tan लेना है। तो secant का भी एक फॉर्मूला है, secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या होता? माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ ओके, माइनस tan इधर जाए क्या होता? प्लस। आप है, प्रेजेंस है इसका मतलब। चलिए, ये स्क्वायर उधर जाए क्या होता? रूट। ये स्क्वायर उधर जाए क्या होता? रूट। तो secant थीटा इज इक्वल टू क्या होता? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आके क्या हो गया? रूट। समझे क्या करे अपना? यहाँ पर ये अपना एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूले को एक्सचेंजिंग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग करके अपने हिसाब से बना रहे, इसको तोड़ के मरोड़ के अपने हिसाब से बनाना बोलते हैं ना, वैसा ही। यहाँ पर क्या करे? स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया। अब इन्हें पूरा tan में दिख रहा है, ये tan है ना उधर से, आपने को tan में लेके आना था, tan में ला लिया, तो ऊपर वाला तो tan हो गया, ऊपर वाला tan हो गया। अब secant को हटा लो, इसको भी tan में लिख दो। क्या आता है इन्हें? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अपना sin थीटा को tan थीटा में लिख दिए। ओके, हेंस प्रूफ। उतना ही है सोल्यूशन। क्या बोला? sin थीटा को tan थीटा में ट्रांसफर करने के लिए बोला। तो अब यहाँ पे sin थीटा में लिए थे, स्टार्ट करते sin थीटा से, लेके जाकर पूरा उसको किस में रख दिया होगा? tan थीटा में। तो sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 1 रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Understood? Now come to the next question. Next question is very tricky. It is the combination of first chapter and fifth chapter, quadratic equation. You know logarithm. Logarithm के बारे में अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अपन थर्ड चैप्टर में पढ़े, पॉलिनोमियल में, और फिफ्थ चैप्टर में ही पढ़े। तो यहाँ पर दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखो कैसा है।
क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट मीन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है हमने को, सिर्फ एक इक्वेशन बनाना है। कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन having roots log of 8 to the base 2 and log of 100 to the base 2 to the base 10। यहाँ पर लॉगरिथम फर्स्ट चैप्टर, ये जो क्वेश्चंस के जो रूट्स मिले अपने को, ये कौन से चैप्टर के? फर्स्ट चैप्टर के। मगर क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का? 5th चैप्टर का। तो ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, तो पहले अपने को फर्स्ट चैप्टर के जो लॉग्स को दिया उसको किसमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता। ये लॉगरिथम है, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए रियल नंबर्स होना पड़ता, तो रियल नंबर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे आप उसको। कैसा कन्वर्ट करते हैं देखिए, लॉग पहले गिवन लिख लो, क्या क्या मिला अपने को, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 को फैक्टराइज करें तो क्या था आपको मालूम है ना, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 क्यूब, 2 क्यूब लिख सकते, 3 क्यूब नहीं 2 क्यूब, 2 क्यूब देखो तो क्या आ गया है log टू दी बेस 2, ये 2 पावर 3 या फिर 2 क्यूब। और एक फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा फॉर्मूला है, log ऑफ x टू दी पावर ऑफ m टू दी बेस a इज इक्वल्स टू m log x टू दी बेस a। यहाँ पर जो ये पावर था उसको लेकर के कहाँ रखना है अपने को, कोफिशिएंट में। तो यहाँ पर पावर में कौन है 3, तो इसको लेकर कहाँ रखना है अपने को, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी क्या लिख सकते बोलिए, 3 log 2 to the base 2 हो गया। देन वन मोर फार्मूला इज देयर, log ऑफ a to the base a is equals to 1, यानी सेम अगर बेस में अगर सेम टर्म रहा या पावर में अगर सेम टर्म रहा तो इसका आंसर क्या होता 1। तो log ऑफ 2 2 सेम नंबर है तो इसका आंसर क्या होता अपने लिए 3 1, तो 3 1 का कितना होता, तो फर्स्ट रूट क्या है अपना, ओनली फर्स्ट रूट, वी गॉट द ओनली फर्स्ट रूट। ओके, अब ये सेकंड रूट भी निकालना है अपने को। सेकंड रूट कौन सा है, log 10 to the base 10। 10 को कैसा लिख सकते हैं अपना, वेरी गुड, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, 100 को क्या रख सकते हैं 10 स्क्वायर, 10 10 जा 100 यानी 10 स्क्वायर। अब सेम फार्मूला पावर में था तो किधर क्या आता है ना, इधर आके कोफिशिएंट में, तो 2 log 10 और ये 10 सेम नंबर ऐसे तो क्या होता बोले अपन अभी 1 log a to the base a is equals to 1। तो 2 log पूरा हट गया, आंसर क्या होता है इसका सिर्फ 1, 2 1 जा। तो जो फर्स्ट टर्म अपना जो आया इसको अपन अज्यूम कर लेंगे अल्फा। क्या होता अपने लिए ने अल्फा, क्योंकि अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना यहाँ पर, तो इसको क्या मान लेंगे अपना अल्फा, और इसको क्या मान लेंगे बीटा। बीटा क्या मान लेंगे इसको, बीटा, अल्फा और ये बीटा। चल अब यहाँ पर भी और क्या करना है हमने को, फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला है। उससे पहले अपन क्या करेंगे देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को प्लस करो कितना होता 5, अल्फा इज 3 बीटा इज 2, तो 3 प्लस 2 5, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 5, अल्फा इंटू बीटा कितना होता 3 इंटू 2 3 टू द 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ अल्फा एफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा आप लोगों को, फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या करना है, k इज अ कांस्टेंट टर्म, k क्या है सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, अपनी मर्जी कुछ भी ले सकते हैं k की जगह पे, अभी फिलहाल नहीं लेना है, एंडिंग पे लेना है। अगर अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहां पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही, उस किसी को कैंसिल करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने के लिए, तो अपनी ओन से कौन सा भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा हो गया, अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया आपको, तो 5, और ये जैसे का वैसा प्लस अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या है 6 हो गया। अब यहाँ पे k की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो k क्या लेंगे अपना 1 ले लेंगे। 1 लेने से क्या होता है, कौन सा भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करो एज इट इज होता, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वी गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द लॉगरिथम एंड यूजिंग द फॉर्मूलेस। समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, फर्स्ट चैप्टर के लॉगरिथम को लेके जाके थर्ड चैप्टर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा, पहले लॉगरिथम सॉल्व करना, फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, अंडरस्टूड ना। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही करते गए तो हो जाता। चलिए फर्स्ट सेक्शन आपका हो गया। 2 मार्क्स के जो प्रॉब्लम्स थे आपके, जो कि बोर्ड एग्जाम के 2 मार्क्स के प्रॉब्लम्स, यानी 2 6 12 मार्क्स। अभी जितने आप 6 प्रॉब्लम्स करे ना, वो कितने मार्क्स के थे पूरे टोटल, ईच आंसर 2 2 मार्क्स के थे, पूरे आंसर्स आपके हो गए 2 मार्क्स के। अब आएंगे आप सेकंड सेक्शन पे, जो ईच आंसर कैरीज 4 मार्क्स। एक आंसर कितने कुछ मार्क्स कैरी करता हुआ 4 मार्क्स,
ठीक है। पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल ना, स्टैटिस्टिक्स में तीन फॉर्मूले से आपके पास, मीन, मोड, मीडियन। ओके, तीन फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले से वो भी स्टेप बाय स्टेप वाइज है, क्लासेस वाइज है। 6 में थोड़े अलग है, 7 में थोड़े अलग है, 8 में थोड़े अलग है, 10 में थोड़े से डिफरेंट है, एडवांस होते गए, ऐसा है। तो अब ये सेकंड सेक्शन में 7th क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ for mode of a data of a group data and explain each term. ओके, मोड का फॉर्मूला आपको लिखना है, उसके टर्म्स को सिर्फ क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए मोड का फॉर्मूला लिखेंगे अपन यहाँ पर। वैसे तो मोड का फॉर्मूला जनरली फ्रीक्वेंसी होता, जैसा कि मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होता, मगर ये चैप्टर में आपका फॉर्मूला देखिए, L प्लस ब्रैकेट ऑन, ठीक है, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई बाई H। ओके, अब ये टर्म्स तो अपने पास फॉर्मूला तो आ गया, अब उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना नहीं है, टर्म का मतलब होता क्या, एल का मतलब क्या होता, बोल सकते कोई, लोअर बाउंड्री। क्या होता, लोअर बाउंड्री। एल का मतलब क्या होता, लोअर बाउंड्री। उसके में क्या है अपना F1 मतलब क्या होता, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोल सकते हैं अपना, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। अगर नहीं बोलना तो लेस फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, लेस बोलो या स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बोलो, आपकी मर्जी। स्मॉलर फ्रीक्वेंसी हो गया। और दूसरा, और उसके में F0 है। F0 मीन्स क्या होती है आपकी, सॉरी, ये F1 जो है था आपका फ्रीक्वेंसी होता है सिर्फ, और जो F0 है वो क्या होता है आपका, स्मॉल फ्रीक्वेंसी। स्मॉल फ्रीक्वेंसी। और उसके में जो F2 है, F2 क्या होता होगा, बिग फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी हुआ, ये स्मॉल फ्रीक्वेंसी हुआ, तो ये क्या होता, बिग फ्रीक्वेंसी या फिर सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी बोलते। अभी फिलहाल अपन ये लिख लेंगे, ठीक है। क्या हो गया अपने पास, क्या क्या टर्म्स एक्सप्लेन हो गए, L एक्सप्लेन हो गया, F1 एक्सप्लेन हो गया, F0 एक्सप्लेन हो गया, F2 एक्सप्लेन हो गया, और क्या बचा अपने पास, H मीन्स आपका होता लेंथ ऑफ द क्लास या साइज ऑफ द क्लास। ओके, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख लो, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल बोलते हैं ना, क्लास इंटरवल। ओके, अंडरस्टूड। बस इतना चाहिए, 4 मार्क्स में प्रॉब्लम है। 4 मार्क्स में जस्ट फॉर्मूला लिखना है आपको, उसके टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। L एक्सप्लेन हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया एंड H हो गया। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, और एक प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री है, प्रूफिंग आंसर है, प्रूफ करना है, थोड़े से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके प्रूफ करना है। A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, और फ्रैक्शंस इक्वल नहीं रहे तो क्या करते हैं अपना, डिनोमिनेटर इक्वल अगर नहीं रहे, या फिर फ्रैक्शंस अगर रहे जिसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहे, तो उसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना है अपने को। क्वेश्चन देखिए, अंडर आप समझ सकते हैं, प्रूव दैट sin theta by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta by sin theta is equals to 2 cosecant theta। ये आपको प्रूफ करना है, यानी ये जो आपका LHS पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, उसको सॉल्व करते हुए राइट हैंड पार्ट लेके आना है हमें। ठीक है, तो अब वहां क्या करेंगे, इसमें से LHS पार्ट को लिख लेंगे। LHS पार्ट क्या है, जरा बोलिए, sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ पर नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहा तो क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये टर्म से ये टर्म को मल्टीप्लाई, ये टर्म से ये टर्म को मल्टीप्लाई, और ये टर्म से ये टर्म को मल्टीप्लिकेशन। तो sin थीटा इंटू sin थीटा क्या होता, sin स्क्वायर थीटा। क्या होता, sin स्क्वायर थीटा प्लस ये टर्म से ये टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है। ठीक है, तो होल 1 प्लस
cos थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेम है ना, बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी एडेड, सो दिस टर्म दोनों टर्म सेम है, पावर स्क्वायर कर दो 2 डिवाइडेड बाई ये दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करना है फिर से, तो क्या होता है 1 प्लस cos थीटा और ये क्या हो गया अपना sin थीटा। अब यहाँ पर कुछ करे ऐसा दिख रहा है अपने को, ऊपर एडिशन में है, नीचे मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते है ना। अगर प्लस मल्टीप्लाई में होता तो साइन कैंसिल, 1 प्लस कॉस कैंसिल हो जाता था, मगर यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है। यहाँ पर एक फॉर्म में अपना a प्लस बी होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर a अपने लिए क्या होता है, यहाँ पर 1 और b क्या होता है अपने लिए cos थीटा, और फॉर्मूला क्या है अपना a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वहां पर उसको सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ, और जो टर्म्स जिसको सॉल्व नहीं करे बोले उन लोगों को एज इट इज लिख दिए। ओके चलिए, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब कितना आपका 1 स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या होता 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, सेकेंड टर्म a स्क्वायर पे आ गया, b स्क्वायर मतलब b क्या है आपका cos थीटा स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ साइड में कर रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए, cos थीटा इंटू 1, ये 2 ये a और ये b, ये 2 तो टर्म है, ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, तो ये cos थीटा इंटू 1 कितना होता cos थीटा होता, फिर cos थीटा इंटू 2 कितना होता 2 cos थीटा होता, तो प्लस 2 cos थीटा हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद में यहाँ पर भी क्या करना है हमने को 1 प्लस cos थीटा एज इट इज और ये sin थीटा एज इट इज हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 cos थीटा है, जो कि कुछ को भी चेंज नहीं कर सकते बोला, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अपना बनता sin स्क्वायर थीटा है और एक क्या है cos स्क्वायर थीटा है, दोनों को अगर कंबाइन करें अपना, यहाँ पर फिर से देखिए देयरफॉर sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका भी एक फॉर्मूला है, क्या है 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इस दोनों को हटा के क्या लिख सकते हैं बोला 1 खत्म, 1 प्लस 2 इन लोगों कुछ जिसको नहीं करे ना कुछ भी जैसे कैसा लिख देना वाला, ठीक है 2 cos थीटा भाई 1 प्लस cos थीटा और ये क्या हो गया अपना sin थीटा। अब यहाँ पर किसी कोई भी कैंसिल हो रहे फिर से नहीं हो रहे, 1 प्लस 1 कितना होता, तो थोड़ा सा पार्ट ये रफ कर देना पड़ता है, अंडरस्टूड ना ये दिस वन। चलिए अब थोड़ा सा इसका पार्ट इधर करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा और ये sin थीटा। अभी भी कुछ सेम दिख रहा है ऊपर नीचे नहीं है, अभी भी सेम है कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या करना है हमने को, दोनों में कॉमन है, मगर कॉमन कौन है 2 को अगर बाहर निकाल दिया पहला तो यहाँ से क्या बचा 1, क्योंकि 2 1 फिर से 2 हो जाता, फिर यहाँ से भी अपना कॉमन 2 बाहर निकाल दिए तो फिर वो भी 2 1 क्या हो जाता 1 हो जाता, तो 1 ये cos थीटा जैसे का वैसा, ठीक है। अगर 1 डालो या नहीं डालो उतना ही होता, क्योंकि cos थीटा 1 कितना होता cos थीटा होता, तो 1 हटा देंगे अपना, क्योंकि अपने ये टर्म के लिए बनाना है ना, इसलिए इसके बाद में नीचे लिखिए सॉरी 1 प्लस cos थीटा और ये sin थीटा हो गया। आपको सेम दिख रहा है ना, 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पर भी सेम था, यहाँ 1 प्लस cos थीटा था, यहाँ पर भी 1 प्लस cos थीटा था, मगर दोनों ऊपर किसमें थे एडिशन में कैंसिलेशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन कर सकते, तो 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा अपना ऊपर से 2 नीचे से sin। अब फिर sin थीटा का एक फॉर्मूला है, sin थीटा का फॉर्मूला था सॉरी 1 बाय sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या प्रूफ करना है कोसेकेंट, तो 1 बाय sin थीटा मतलब क्या होता है आपका कोसेकेंट थीटा यानी कोसेक थीटा, तो 1 बाय sin को हटाई क्या लिख सकते हैं अपना कोसेकेंट थीटा, तो देयरफॉर 2 कोसेकेंट थीटा इट इज आवर RHS। आप LHS से स्टार्ट करे थे, प्रूफ करे कहां तक आ गया अपना RHS आ गया 2 कोसेकेंट थीटा, देयरफॉर LHS is equals to sorry hence proof we are not proving equal, we are proving LHS to RHS, hence proof, understood है ना। इसमें एक कॉमन फार्मूला कौन सा था जो कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से प्रॉब्लम्स और फॉर्मूले से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा है, सेट्स, यू नो अबाउट सेट्स का चैप्टर जो है अपना सबसे इजी चैप्टर पूरे 10th क्लास में, सबसे इजी चैप्टर है। घर में अपना बर्तन जमाते से देखिए आप ना,
चमचे एक जगह रखते, प्लेटा एक जगह रखते, भगोने एक जगह रखते। तो वैसा यहाँ पर भी क्या करना है, खाली आपको अरेंज करना है, टर्म्स को है ना अरेंज करना है, यहाँ से उठा के उसको उधर रखना है, वहां से उठा के उसको उधर रखना है, वैसा अरेंज करना है बोले, ऐसा प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, चलिए बॉक्स देखिए, फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, पहले बॉक्स देख लो अपना, क्या है बॉक्स में आपका। चलो देखो, यहां पर आपका ये होता x और ये क्या है आपका y। ये आपका x है और ये क्या है आपका y। यहाँ पर बीच में टर्म्स देखिए, p है और e है और ये आपका क्या है n। पहले मैं आपको समझा दूं, ये x मतलब क्या होता है, ये पूरा सर्कल, पहला सर्कल जो दिख रहा है आपको, पहला सर्कल। जो y मतलब क्या होगा, ये दूसरा सर्कल। और दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीच में कॉमन है p e और ये n। ओके, अब यहाँ पर दूसरे देखिए c i और l, और यहाँ पर क्या है a u और ये t। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका यूनिवर्सल का सिंबल है। कौन से भी सेट को अगर वेन डायग्राम में जब अपन बताते तो यूनिवर्सल है, पूरे टर्म्स एक जगह है बोले ऐसा। बर्तन आप पूरे भगोने सब भगोन सिखाने में रखे हैं बोले ऐसा, किचन में रखते ना पूरे सामान, ले जाकर घर पे रखे तो बातें सुनते थे। तो यहाँ पे भी क्या करे, पूरे एक जगह रखे बोले ऐसा। मगर एक जगह नहीं है ला, थोड़ा अलग 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 करे हुए है, तो उसको अरेंज करके अपने को रखना है। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट क्या है इसमें, x यूनियन y, x यूनियन y। सेकेंड क्वेश्चन आपका x इंटरसेक्शन y की। थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, x माइनस वाई। और फोर्थ क्वेश्चन आपका y माइनस x। ये फाइंड आउट करना है अपने, ये डायग्राम को देखते हुए। बोलते हैं ना अलग अलग चीजों को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनिटी। यूनिटी मतलब पूरे एक जगह सब बराबर है ना, कोई भी अलग नहीं। तो यहाँ पर जो सर्कल में जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं ना, पूरे को एक जगह कर देना, पूरे टर्म्स को क्या करना है अपने को एक जगह कर देना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं यूनियन। तो इसका आंसर देखिए फर्स्ट वन सॉल्यूशंस यहाँ पर लिखिए। फर्स्ट वन सोल्यूशन अपना क्या है, x यूनियन y। x यूनियन यानी पूरे टर्म्स, जरा पूरे टर्म्स क्या जरा बोलिए, एक मिनट। ये पूरे टर्म्स, यहां से पूरे टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है c, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है p, इसके अंदर में e, इसके अंदर में n, इसके अंदर में a, इसके अंदर में u, इसके अंदर में t। हो गया यूनियन, फर्स्ट वन हो गया सोल्यूशन। नहीं, सिर्फ आपको यूनियन यानी पूरे टर्म्स को एक सेट्स में है ना अरेंज करके रखना है। जैसा बोलते हैं ना, पूरे प्लेटों को लिख जाके एक स्टैंड में रखना, चमचों को प्लेटों को एक जगह नहीं रख देना, पूरों को एक जगह करना। तो यूनियन का मतलब भी क्या था, पूरों को एक जगह रख देना, रख दिया। अब वहां पर क्या करना है, दूसरा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी जो सेम सेम जो टर्म्स रहते ना, खाली इसको लिखना। तो यहाँ पर सेम टर्म यानी इसके अंदर ये जो सर्कल है, ये सर्कल में पी एन है और ये सर्कल में भी क्या है पी एन है। तो यहाँ पर ये एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर क्या आता है आपका, पी ई और आपका एन। हो गया, हो गया। सेकेंड वन सोल्यूशन भी क्लियर, एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया सेकेंड वन। ये फर्स्ट वन था आपका, ये सेकेंड वन हो गया। अभी देखिए थर्ड वन करेंगे। थर्ड वन क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इसको भी पहले सेट ओपन कर लो अपना, सेट ओपन कर लिया हमने। एक्स माइनस वाई, एक्स मतलब क्या है, ये पूरा टर्म है, वाई मतलब क्या है, ये पूरा टर्म है। तो ये एक्स वाला जो सर्कल है उसमें से पूरा वाई को निकाल दो, यानी पूरे वाई को निकाल दे तो कौन कौन बचे आपके पास, सिर्फ सी आई और एल। हो गया आंसर, सी आई और एल। क्लोज सेट। एक्स माइनस वाई यानी पूरे जो एक्स का सर्कल है और ये वाई का सर्कल है, ये दोनों सर्कल में से पूरा वाई का सर्कल निकाल देना है अपने। माइनस बोले तो माइनस करना, सब्ट्रैक्ट कर देना, तफरीक निकाल देना। तो ये पूरे टर्म को निकाल दे दो, बचा कौन, सी एल और सी आई और एल बचा। अब दूसरा टर्म कौन सा है लास्ट अपना, वाई माइनस एल। फोर्थ क्या है, वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स मतलब क्या करना है, वाई में से पूरे एक्स को निकाल देना है। वाई में से पूरे एक्स को निकाल देते क्या बचा, ए यू और टी। सिंपल, ए यू एंड टी। हो गया सोल्यूशन। सिर्फ उतना ही करना है हमें। यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ अरेंजिंग। सेट मतलब किसको बोलते हैं, अरेंज। सेटिंग करो बोल के बोलते हैं, तो कोई काम करने से पहले सेट कर लो, अपने को प्रोग्राम करना है या फिर कोई काम करना है, दावत है तो सेट कर लो। तो यहाँ पर भी सिर्फ अपने को सेट करना है, कौन सी चीज को किधर रखना है वैसा सेट करना है।
अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीरीज। सीरीज मालूम आप लोगों को 1 के बाद में क्या आता, 2 के बाद में क्या आता, कोई 4 बोल दिया तो गलत हो जाता है नहीं होता ना 4, ऐसा 2 के बाद में 4 नहीं आता, 3 आता। तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब अपना क्या होता, सीरीज में। चैप्टर जो अपना सीरीज के बारे में है, तो सीरीज के हिसाब से एक क्वेश्चन है आपका, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if 4 times of 4th term is equal to 8 times of the 8th term, then prove that 12th term of the progression is 0। ओके, यहाँ पर से थोड़े फॉर्मूलेस यूज करना पड़ता हमने को। पहले से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए, यहाँ पर 4th टर्म है और कौन सा टर्म है, 8th टर्म है। पहले अपने पास फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल जो टर्म रहता है वही टर्म। जैसे मैं अगर 5 बोला, 5 के अंदर बोला 10, 10 के अंदर बोला 12, है ना। ये क्या है, सीरीज में, एक नाम सीरीज दिया आपको। पहला टर्म क्या बोला मैं आपको 5, दूसरा टर्म क्या बोला आपको 10, तीसरा टर्म क्या बोला मैं आपको 12। वैसे करते करते एक सीरीज, एक नंबर होंगे सीरीज में जो कैसे बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर अपने क्या करना है, 4 टर्म लेना है। और टर्म को से अपने को नहीं मालूम, सिर्फ खाली क्या होना, 4 टर्म लेना है। 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और टर्म्स का फॉर्मूला देखिए, 4th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है मालूम आपको, a प्लस 3d। 4th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d। और कौन सा टर्म होना है अपने को, 8th टर्म। 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए a प्लस 7d, a प्लस 3d और a प्लस 7d। 2 टर्म्स मिल गए अपने को। और उसको क्या करना है अपने को, इक्वेशन बनाना है। इसको देखिए क्या है, देखो 4 टाइम्स ऑफ 4 टर्म, यानी 4 टर्म को क्या करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू, या लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ 4th टर्म। 4th टर्म क्या है अपना, a प्लस 3d, इज इक्वल टू मतलब इक्वल की साइन, है ना। और क्या बोला हमने फिर से, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स यानी 8 मल्टीप्लाई बाई कौन सा टर्म, 8th टर्म। 8 टर्म क्या है बोलो, a प्लस 7d, ब्रैकेट ऑफ, हो गया। अब बन गई अपनी इक्वेशन। उसको सॉल्व करते तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आता। क्या बोल रहा हूँ, फाइंड करने के लिए 12th टर्म और द प्रोग्रेशन इज 0। 12th टर्म 0 है बोल के बताना करते, तो 12th टर्म का जिक्र यहाँ पर कहाँ पर भी है, नहीं है। आप सॉल्व करते गए तो ऑटोमेटिकली आता। देखो 4 इंटू है 4a, ओके, प्लस 3 4 जा 12 और d जैसे कैसा हो गया, इक्वल, बराबर है। इसका 8 इंटू है 8 है बराबर हो गया, प्लस इंटू प्लस, प्लस 8 7 जा 56 और d जैसे कैसा हो गया, क्लियर। अब यहाँ 4a प्लस में इधर आए क्या होगा, माइनस, है ना। एक टर्म्स को ट्रांसफर करना है, ठीक है। दोनों में से किसकी भी किधर भी लेके जाओ आपके ऊपर रहता। 4a माइनस 8a, मैं 8a कुछ इधर ला लेंगे, ठीक है। प्लस 8a इधर आए क्या होगा, और ये प्लस 12 उधर जाए क्या था, तो वही करेंगे अपन यहाँ पर 56d माइनस 12d। 8a में से 4a निकालो, कितने बचते, माइनस 8a नहीं 4a 8a में से 4a निकालना है, प्लस 1 माइनस है तो माइनस करना है। तो इसका में 56 में से 12 निकालो, कितने बचते, 44 पक्का, 44 बचते ना, बराबर है। क्या करें, 56 में से 12 निकाले क्या होगा, 44, और ये d जैसे का ऐसा, क्लियर। अब उसके में क्या करना है अपने को, देखिए ये 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाए क्या होता, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई में नीचे क्या होता है, डिवाइड होता। तो यहाँ पर देखिए ना, तो ये टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, माइनस 4a है ना, उधर जाए क्या होता है, प्लस 4a। तो 4a प्लस 44d इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है,
4 का टेबल कॉमन है ना, 4 बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा a प्लस 4 1 4 4 1 4 अरे डी जैसे का ऐसा इक्वल 0 जैसे का ऐसा हो गया। 4 मल्टीप्लाई में 10 जाए क्या होता है डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता आंसर, 0 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर क्या होता 0 होता, 0 हो गया, लिख दिया इसको। अब जरा मेरे को बोलिए, आप ना बोले थे यहाँ पर सर फोर्थ टर्म बोले तो क्या बोले आप, a प्लस 3d बोले है ना, और 8 टर्म बोले तो क्या बोले आप, a प्लस 7d बोले। अगर मैं आपको बोला 100 टर्म बोले तो आप क्या बोलते, a प्लस 99d बोलते। तो यहाँ पर जो है आपका a प्लस 11d मतलब कौन सा टर्म होता, 12 टर्म आया क्वेश्चन में, 12 टर्म कुछ भी चलता ना, 12 टर्म 0 आएगा, 12 टर्म 0 है वहां पर है ना, तो प्रूफ कर दिया अपना आंसर। तो यहाँ पे लिखना देयरफॉर a12 इज इक्वल्स टू a प्लस 11d, हेंस प्रूफ। क्या प्रूफ करे अपना, 12 टर्म क्या है 0 है बोल के प्रूफ करे अपना है ना, 12 टर्म 0 है बोल के प्रूफ कर दिए, उसको सॉल्व कर देगा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया वहां पर, समझ में आया। चलिए अब जरा दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन सबसे इजी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता, चांस, होना या नहीं होना। क्रिकेट देखते हैं आप लोग, क्रिकेट देखते हैं। सबसे पहले है ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दो। क्रिकेट जब होता ना, मैच स्टार्ट होने से पहले एक जने क्या करते थे, हम स्कोर बोल देते थे, मैच स्टार्ट होने से पहले स्कोर बोल देते थे, क्या स्कोर है, कैसा बोलते थे उन्हें बोलो, मैच स्टार्ट होने से पहले बोल देते थे स्कोर, 0 रन 0 विकेट है ना, मैच स्टार्ट नहीं हुआ मगर स्कोर बोल दिया ना, 0 रन 0 विकेट है ना, ये भी स्कोर होता, नंबर है ना ये भी अपना 0, तो ये है। प्रोबेबिलिटी भी क्या होता है, चांसेस, प्रोबेबिलिटी में भी क्या करते, चांसेस बताते, यानी होना या नहीं होना, करना या नहीं करना, ये चीज बन सकती या नहीं बन सकती, उसके बारे में रहता, ठीक है। तो उसी टाइम में एक क्वेश्चन है आपका, देखिए कैसा क्वेश्चन है, गेम के जैसा है क्वेश्चन ये। इन ए बैग देयर आर 5 रेड बॉल्स, 5 red balls, 2 black balls and 3 white balls. So total balls कितने वगैरह बोल सकते कोई, कितने balls है, 10 balls है ना, 5 red balls है, 3 black balls है and 3 white balls है, तो total balls कितने हुए, 10 balls हुए। तो इसकी अपने को क्या मालूम बना है क्वेश्चन में, if one ball is सेलेक्टेड रैंडमली, पूरे बॉलों को एक बॉक्स में डाल दिए या फिर बैग में डाल दिए, उसके अंदर ना आखा मुझके एक बॉल निकाले है ना, एक बॉल निकाले आखा मुझके, तो कौन सा बॉल आता है उनके बताना है, सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द बैग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 2 सिचुएशंस। पहली सिचुएशन आपकी क्या है मालूम, देखो उधर, गेटिंग ए रेड बॉल, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। ये आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखिए, इन ए बैग, बैग के अंदर देयर आर 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल रखे हुए हैं, 2 ब्लैक बॉल रखे हुए हैं, 3 व्हाइट बॉल रखे हुए, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए अपने वास्ते, सोल्यूशन में पहले वो लिख लेंगे अपना है ना, पहले सोल्यूशन में वो लिख देंगे, टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितने हैं, 10 बॉल्स बोल के लिख देंगे अपना, ठीक है, टोटल बॉल्स है ना, या फिर इसका क्या बोल सकते हैं, चलो ठीक है देखेंगे, हो गया, टोटल बॉल्स कितने हैं, 10 बॉल्स पहले लिख लेंगे। ब्लैक रेड बॉल कितने हैं, 5, रेड बॉल्स 5, ब्लैक बॉल कितने हैं, ब्लैक बॉल्स 2 है, व्हाइट बॉल कितने हैं, 3 है, चलो 3 है, व्हाइट बॉल्स 3 है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग ए रेड बॉल, अपने को रेड बॉल होना कहते, जब बॉल निकाले तो रेड बॉल होना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E बाई N ऑफ
एस, इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब इसका क्या बोलते हैं, पहले अपने को जो होना है वो ऊपर लिख लेना, पूरे कितने हैं इसके अंदर वो जिसके अंदर नीचे लिखना है था। यानी कितने बॉल्स होना है अपने को, रेड बॉल होना है। रेड बॉल कितने अपने पास 5 है, और टोटल बॉल्स कितने हैं बैग के अंदर 10 है, तो टोटल बॉल्स कितना आता है आपका 10। और आपको कौन से बॉल होना है, रेड बॉल कितने अपने पास 5। तो यहाँ पर लिखो फर्स्ट वाली सिचुएशन, पहले लिखना है लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। उस इवेंट में रेड बॉल आने का इवेंट क्या होता देखना है। तो P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E कितना था अपना, रेड बॉल कितने अपने पास 5 है, टोटल बॉल्स कितने 10 है, तो 5/10 का आंसर क्या आता 1/2। हो गया आंसर, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2। तो अपने रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया गेटिंग अ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बता दी। तो नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, अपने को रेड बॉल नहीं होना है, बॉल जब निकाल रहे होगा तो रेड बॉल नहीं होना है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो आ गई अपनी। सेकंड प्रोबेबिलिटी का भी और एक फॉर्मूला है, क्या मालूम, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है देखो अभी बताता हूँ आपको। आप खाना खाए, फरमान खाना खाए, आप खाए, आप खाना खाए, खाए नहीं खाए, नहीं खाए, खाना खाए, खाना नहीं खाए, इन्हों खाना खाए, इन्हों खाना नहीं खाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, चांसेस करना या नहीं करना, करना तो भी या नहीं तो भी करना, तो वैसे है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं करना, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती 1 है ना। यानी सर्टेन इवेंट, यानी कैसा भी इवेंट हो रहा वहां पर, हो रहा या नहीं हो रहा, दोनों मिला के क्या आंसर है आपका 1। तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/2 है ना। यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 आई। तो दूसरी नियाने की प्रोबेबिलिटी अपने को मालूम नहीं मालूम, तो P ऑफ नॉट ई बोल के जैसे वैसा लिख दो, इज इक्वल टू इसका आंसर क्या है 1, ये प्लस 1/2 तो जाए क्या होता, तो P ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 निकालो कितना बचता है आपका 1/2, एक में से आधा निकालो आधा से बचेगा ना 1/2। तो दूसरी P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल का आंसर भी क्या आता है आपका 1/2। बॉल अगर वो पूरे बॉलों में से अगर एक बॉल निकाले तो हर 5वीं बॉल पे अपने को क्या निकलता, एक 1/2 है ना, तो हर दूसरी बॉल अपनी रेड निकलती। एक्सपेरिमेंट करके देखे ना बोला, तो और दूसरी बॉल क्या निकलती अपनी रेड निकलती। और चांसेस है कि रेड नहीं भी निकलने के भी चांसेस है, रेड निकलने के भी चांसेस है, 2 बारी में। पहली बार बॉल उठे रेड आ भी सकता नहीं आ भी सकता, दूसरी बॉल उठे रेड आ भी सकता नहीं आ भी सकता, तीसरी बॉल उठे तो चांसेस कम ज्यादा रहते, वैसा बोलेगा। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। अंडरस्टूड। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी सेकेंड सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड सेक्शन का। ये सेकेंड सेक्शन के थे क्वेश्चंस 4 मार्क्स में। चलिए सेकेंड सेक्शन का क्वेश्चन देखिए कि क्या है। चलिए इन रेक्टेंगल फिर मालूम है ना आपको, चलिए RACD एंड रेक्टेंगल ABCD where AB is equals to 2x minus y and BC is equals to 15, CD is equals to 2 and D और A is equals to x plus 3y, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, रेक्टेंगल ABCD, ये रेक्टेंगल AB कितना है आपका 2x minus y और BC कितना है आपका 15, CD कितना है आपका 2 और DA कितना है आपका x plus 3y। अपने को फाइंड क्या करना है, x एंड y फाइंड करना है, ठीक है। चलिए पहले क्या करेंगे, अपना एक रेक्टेंगल बना लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल बनाना क्वेश्चन में रेक्टेंगल, इसको नाम दे देंगे A B C और ये D। AB कितना है बोलो 2x minus y और BC कितना है 15 और CD कितना है आपका 2 और DA कितना है आपका x plus
3y। एक प्रॉपर्टी मालूम है अपने को रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ लिख लेंगे इन रेक्टेंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर अपोजिट साइड्स क्या होते हैं अपने, इक्वल। तो पहली अपोजिट साइड को नहीं बोलो, ये साइड और ये साइड इक्वल होती, और ये साइड और ये साइड इक्वल होती। तो ये साइड क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू सी और डी। ए बी किसके बराबर है माँ, सी और डी के। तो ए बी कितना है आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी डी कितना है 2। इसको अपना इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, क्योंकि इक्वेशन बन गए ना अपनी लीनियर इक्वेशन। दूसरा क्या है अपना बी सी इज इक्वल्स टू डी ए या ए डी कुछ ही बोलो आप। हमने क्वेश्चन में क्या मिला यहाँ पर, डी ए मिला, तो डी ए लिख लिए। ए बी सी कितना है आपका 15 है, इज इक्वल्स टू डी ए कितना है आपका x प्लस 3y। इसकी इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना। इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई। फिर अब लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सॉल्विंग 1 एंड 2, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 कितनी है आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। हो गए दोनों इक्वेशन। यहाँ पर एक टर्म को सेम करना पड़ता है अपने को, सेम कौन सा भी टर्म है इसमें अपने पास। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x है, नहीं है सेम। यहाँ पर x है तो यहाँ पे 3y है, नहीं है सेम। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 15 है, सेम टर्म नहीं है। किसी को तो भी एक को सेम बनाना पड़ता, तो एक पूरी इक्वेशन को किसी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ये पूरी इक्वेशन है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर लिख लो अपन इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 इंटू एक्स कितना होता, पहले ये इक्वेशन लिख देंगे अपन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। उसके में 2 इंटू एक्स 2x प्लस इंटू प्लस प्लस 3 2 जा 6y हो गया, और यहाँ पर 15 2 जा कितना होता 30। अब कोई सेम दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, साइन चेंज करना है, माइनस माइनस माइनस। क्यों बोले थे, यहाँ पर प्लस थी तो इसको माइनस कर दिए, यहाँ पे प्लस थी तो इसको भी माइनस कर दिया, यहाँ प्लस थी तो इसको भी क्या कर दिए माइनस। ये दोनों सेम टर्म्स है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, है ना। अब यहाँ पर दोनों की साइन सेम है, दोनों को प्लस कर देना। 6 यहाँ पर 6y है, यहाँ पर कितना है 1y है, तो कितना y होता माइनस 7y। यहाँ पर 30 प्लस में, सॉरी 30 किस में माइनस में, और 2 किस में प्लस में, तो एक प्लस और एक माइनस क्या होता है अपने लिए माइनस। तो 30 में से 2 निकालो कितना बचता 28, और माइनस की साइन इंक्लूडिंग। तो यहाँ पर क्या क्या टर्म्स बचे अपने को देखो, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 28। ये माइनस 7y हो जाए क्या होता डिवाइड में होता, तो माइनस 28 बाय माइनस 7, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 7 मतलब 7, 7 4 जा 28। तो y की वैल्यू क्या है अपने को, हमने कौन से वैल्यूज फाइंड करना है क्वेश्चन में, x एंड y की वैल्यू तो निकाल दी अपना, है ना। y की वैल्यू तो निकाल दिए, अब क्या करना है अपने को x की वैल्यू भी निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो आप। किसमें कर देंगे बोलो अपन, सेकंड में कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट y इन 1 या फिर 2 किसमें भी कर दो आप, 2 में करेंगे 15x प्लस 3y की जगह पे क्या रखना है अपने को 4। यहाँ पर y था ना, y को हटा के 4 कर 3 4 जा 12, तो x प्लस 12 प्लस 12 इधर आए क्या होता हमारा, तो 15 माइनस 12 का आंसर क्या होता 3। 15 में से 12 निकालो कितना बचा 3। तो y की वैल्यू क्या आई आपको 4 और x की वैल्यू क्या आई आपकी 3। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वही था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करें तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और सॉरी इक्वल, उसके हम लेके सॉल्व करें तो आपको क्या क्या मिल गया वैल्यू, y की वैल्यू 4 हो गई और x की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो सेकंड सेक्शन के क्वेश्चंस भी आपके क्लियर 12 तक। अब यहाँ से आपका मेन सेक्शन है थर्ड सेक्शन, जो कि मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, इसमें से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस, है ना। ये फर्स्ट सेक्शन के कितने मार्क्स है अपने को, ईच क्वेश्चंस के 2 मार्क्स है। सेकंड सेक्शन में ईच क्वेश्चन के कितने मार्क्स है अपने को 4 मार्क्स है। अब वैसे ही थर्ड सेक्शन में कितने मार्क्स आते हैं 6 मार्क्स। ईच क्वेश्चंस कैरी 6 मार्क्स, ओके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है थर्ड सेक्शन में। यस सर, दिस वाज वेरी इजी। चलिए, थर्ड सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका प्रूफिंग आंसर। प्रूफ दैट 3√5 प्लस √7 इज इरेशनल। इरेशनल लेवल के प्रूफ करना है नंबर को। ये जो नंबर अपने को मिल गया उसको क्या करना है अपने को इरेशनल लेवल के प्रूफ करना है। अपने फर्स्ट चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस है, ठीक है। प्रैक्टिस करे से 6 बोला तो सोल्यूशन में सर इन्हें क्या बोला हमने को, ये इरेशनल लेवल के प्रूफ करो बोला हमने।
उन्हें खुद बोल दिया पहले इरेशनल है, बोल के इरेशनल है प्रूफ करो, तो अब वहां से क्या मान लेंगे, इरेशनल नहीं है मान लेंगे, रेशनल लेवल के मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, बोला इमेजिन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखो लेट अस अज्यूम दैट 3√5 प्लस √7 इज रेशनल। अब बोलना उसको क्या मान लेंगे, रेशनल लेवल के मान लेंगे, ठीक है। रेशनल लेवल के ठीक है। थर्ड सेक्शन जो अपना बोर्ड एग्जाम है, थर्ड सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, प्रूव दैट तो 3 प्लस √7 इज इरेशनल। ओके, नहीं इरेशनल लेवल के तो अपने बोल दिया, तो अब क्या करें, इसको रेशनल लेवल के ले लेंगे। नंबर क्या है अपना, लेट अस assume that 3√5 plus √7 is रेशनल, ठीक है। रेशनल लेवल के मान लिए इसका अपना, जैसा ही रेशनल लेवल के मान लेते हैं अपना नंबर, तो कौन सा भी नंबर रहने दो, उन्हें p बाई ए बाई बी के फॉर्म में आ जाता, क्योंकि हर रेशनल नंबर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता रेशनल नंबर, तो इसलिए अपना इसको क्या मान लिया, a बाई बी। और यहाँ पर a और b क्या होते हैं अपने वास्ते, a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b क्या होते हैं अपने वास्ते, इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्विंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर देखो क्या था, या फिर टर्म को पहले ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपना, तो यहाँ पर पहले टर्म को 3√5 इज इक्वल्स टू a बाई बी माइनस √7, ये प्लस √7 था ना, उधर क्या होता है माइनस √7, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये पूरे होल टर्म के ऊपर स्क्वायर आ जाता, ये होल स्क्वायर प्लस a बाई बी माइनस √7 होल स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन होता अपना, अभी सॉल्व करे थे पूरा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर होता और ये √5 के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ पर अपना a कितना हो गया, a बाई बी पूरा a होता, ये दूसरा टर्म कौन सा है अपना, √7, फर्स्ट टर्म में a हो गया, सेकंड टर्म आपका √7, तो a स्क्वायर मतलब क्या होता है, a बाई बी होल स्क्वायर प्लस b मतलब क्या है आपका वहां पर √7, b क्या है आपका √7, तो यहाँ पर क्या है ना √7 होल स्क्वायर प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, फॉर्मूले में भी क्या बनता है यहाँ पर माइनस 2a और ये b, ठीक है। ये 3 स्क्वायर कितना होता 9, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल बचा क्या सिर्फ 5, और यहाँ पर क्या हो गया a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर रहता, फिर इसके यहाँ प्लस ये स्क्वायर और रूट कैंसिल बचा क्या सिर्फ आपका 7, ये माइनस 2 इंटू ए 2a बाई बी √7, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे बोला 9 5 से कितना होता 45 प्लस 45 इधर आए क्या होता माइनस 45, और ये माइनस 2 बाई बी जो 7, ये पूरा टर्म जो माइनस में है इधर आए क्या होता है प्लस में, डिवाइड में नहीं प्लस में होता, ये माइनस वाला टर्म है ना, इधर आए क्या होता है प्लस में, तो ये 2a बाई बी √7 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 7, और ये 9 5 से कितना होता, तो इधर आए क्या होता माइनस 45 में से 7 माइनस करो कितना बचता 38, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 38 प्लस 38 माइनस 38, क्योंकि अपना टर्म किसमें बड़ा टर्म माइनस में है। अब यहाँ पर भी डिवीजन फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या होता बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो हाँ a स्क्वायर हो गया माइनस b 38 b स्क्वायर, ये टर्म इसको मल्टीप्लाई था a स्क्वायर बन जाए a स्क्वायर, ये b स्क्वायर इंटू 38 b स्क्वायर बाई b स्क्वायर बन जा b स्क्वायर हो गया। अब ये यहाँ पर भी 2a बाई बी है, फ्रैक्शन में है, इधर जाए क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता, फ्रैक्शन उधर जाए क्या हो जाता अपने इसलिए रेसिप्रोकल, तो √7 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 38 b स्क्वायर बाई b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2a बाई b था, तो यहाँ पर क्या होता b बाई 2a, यहाँ ऊपर का b कैंसल और ये इसका स्क्वायर कैंसल, क्योंकि यहाँ पर b 2 बार है, यहाँ पर सिंगल टाइम था, तो एक b यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ का b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या क्या बचा बोलो √7, एक तो एक आ गया, फिर इसके हमने a स्क्वायर माइनस 38 b स्क्वायर बाई 2a और ये b, ये 2a यहाँ से आ गया और ये b यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रूफ हो गया, यहाँ से स्टार्ट करे थे बोला √33 √5 से लेके स्टार्ट करे थे, खत्म कहाँ पे लाए थे √5 पे, तो फिर से फ्रैक्शन में आया नंबर ये, तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसको थोड़ा सा रफ करके मैं बता देता हूँ। अपन क्या अज्यूम करे थे यहाँ पर, अज्यूम क्या करे थे, इसको रेशनल लेवल के प्रूफ करे अज्यूम करे थे, तो लास्ट में रेशनल ही चाहे आपने नंबर है ना, रेशनल लेवल के अज्यूम करे थे, लास्ट में आंसर क्या है फ्रैक्शन में चाहे ना,
रेशनली 4, रेशनल था तो रेशनल आता, इरेशनल रखे तो भी क्या आता, इरेशनल आता। तो यहाँ पर लिखना सिंस ए एंड बी आर क्या थे वहां, इंटीजर्स थे, ए एंड बी क्या था अपने से, इंटीजर्स। और अपना आंसर क्या है वो वाला बोलो, ए स्क्वायर माइनस 38 स्क्वायर बाई 2a इज रेशनल। क्या अपने वास्ते ने रेशनल, बट द contradict that fact root 3 root 5 plus root 7 is irrational। अब बोलना क्या बोले थे हम पहले से, वो इरेशनल लेवल के बोलना था हमने, है ना जी। 2ab कौन सा 2ab, नहीं ए, हाँ 2ab, ओके 2ab। और रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 7 क्या था, इरेशनल लेवल के था। तो देयरफॉर हम प्रूफ कर दिए यहाँ पर, therefore3 root 5 plus root 7 is irrational। ओके यहाँ पर सिर्फ क्या करना था, देखो हमने पहले एज्यूम कर लिए कि वो अपने पास इरेशनल था, बल्कि रेशनल था बल्कि एज्यूम करके सॉल्विंग करे, अपने को फ्रैक्शन में नंबर आया। तो बोला क्या बोले, ए बाई बी, ए एंड बी क्या था अपने लिए, इंटीजर्स था। तो जो टर्म आया वो फ्रैक्शन में था ना अपना, तो फ्रैक्शन में था, तो इसलिए इसको क्या बोले अपना रेशनल। मगर अपना अज्यूम क्या करे थे वहां पर, रेशनल लेवल के अज्यूम करे थे, और एक्चुअल में है क्या नंबर, वो इरेशनल है। तो बट द contradict that fact 3 and root 5 plus and root 7 is irrational, so therefore root 3 plus root 5 plus root 7 is irrational। ओके कितना अच्छा है आपका। दूसरा सोल्यूशन देखिए यहाँ पर, अरे लाइट ऑफ होने की वजह से यार होते जा रहा। ओके ब्रो कंटिन्यू करना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 13 क्वेश्चन आपका हो गया। देन 14 क्वेश्चन, ग्राफ बनाना है आपको। पॉलिनोमियल्स, चलिए बोर्ड पे देखिए, ड्रॉ द ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन p of x is equal to x square plus x minus 12 and find its zeros from graph। Okay, this is the question। Okay, draw the graph for the quadratic equation p of x square plus x minus 12 then find its zeros from the graph। ग्राफ से जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले सोल्यूशन में अपना क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। p of x कितना है अपना, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 हो गया। बॉक्स बना लो, बॉक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए तो आसानी हो जाती है अपने को। यहाँ पर नंबर्स ले लेंगे, यहाँ पर नंबर्स आप थोड़ा सा अज्यूम करते हुए लेना रहता अपने को। ये इक्वेशन है, इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जब हम क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन के हिसाब से, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर होता है ना। अब इसके दो टर्म्स क्या होते हैं बोलिए, जिसको मल्टीप्लाई करे तो ऊपर वाला टर्म आना और प्लस माइनस करे तो बीच वाला टर्म आना। 3 4 जा 12, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं 3 4 जा 12, और किसको प्लस और किसको माइनस देना पड़ा, इसको प्लस देना पड़ता है इसको माइनस। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, +3 आ सकता है और -4 आ सकता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन आंसर -4 से स्टार्ट करेंगे। -4 -2 और एक 0 और 1 3 एंड 5, तो 4 भी ले सकते हैं, 3 एंड 5 ले लेंगे। चलिए अब जरा इसको सॉल्व करने का देखिए प्रोसेस कैसा करना है। पहले सब्स्टिट्यूशन करना है और y की वैल्यू लेके आना है, ठीक है। पहले अपना इक्वेशन लिखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ओके, इन प्लेस ऑफ x वी आर सब्स्टिट्यूटिंग -4।
एक्स की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -4। चलिए आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, -4 होल स्क्वायर हो गया प्लस ऑफ 4 -12। 4 स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस स्क्वायर में जाके प्लस हो जाता। फिर क्या है 14 12 +4 -12, 16 + 4 कितना होता 20, 20 में से 12 निकालो 8 हो गया। अंडरस्टूड। यहाँ पर देखिए -4 4 स्क्वायर 16 हो गया, ये +4 और यहाँ -12, तो 16 + 4 कितना हो गया 20, 20 में से 12 निकाल दो 8, एक वैल्यू आ गई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो 8 हो गया। अब दूसरी वैल्यू x² + x -12, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है अपने को -2, ठीक है -2 नहीं -2 सब्स्टिट्यूट करो, होल स्क्वायर हो गया +2, ओ सॉरी यहाँ पर -4 था ना अपना, तो यहाँ पर -4 लेना था हमने, यहाँ पर भी क्या होता है -4, तो ये 16 और ये -16 होता, ठीक है -4 -12 कितना होता -16, तो 16 में से 16 निकालो कितने बचते आपको, तो यहाँ पर 8 नहीं आती, वैल्यू 0 आती। ओके चलिए यहाँ पर देख लो फिर से -2 होल स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस नहीं यहाँ पर अपने क्वेश्चन में से प्लस था, लिख लो ये -2 जैसे कैसा और -12, ये प्लस इंटू माइनस कितना होता माइनस, ये 2 स्क्वायर कितना होता 4, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 2 -12, ठीक है -2 और -12 कितना होता -14, -14 में से 4 निकाल दो -10, क्योंकि माइनस में है ना नंबर बड़ा, तो -10, यहाँ पर क्या आना है वैल्यू -10, दो वैल्यूज निकाल दिए अपन। अब तीसरी वैल्यू x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो x इज इक्वल इन प्लेस ऑफ x वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 -12, 0 स्क्वायर पूरा आंसर क्या था इसका -12, क्योंकि 0 स्क्वायर 0 हो जाता है, 0 का 0 होता है, तो -12 इसका आंसर, तो यहाँ पर भी क्या आना है अपने को -12, और भी क्या सब्स्टिट्यूट करना है इन प्लेस ऑफ x, अगेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग +1, नेगेटिव नंबर्स प्लस सब्स्टिट्यूट करे थे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना है पॉजिटिव नंबर सब्स्टिट्यूट करना है, तो x की जगह पे 1 होल स्क्वायर +1 -12, 1 स्क्वायर कितना होता 1 +1 -12, 1 + 1 कितना होता 2, 2 -12, 12 में से 2 निकालो -10, यहाँ पर भी क्या आना है अपने को -10। अब क्या करना है x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है x² + x -12, इन प्लेस ऑफ x वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 3, ठीक है, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 -12, 3 स्क्वायर कितना होता 9, 9 + 3 -12, 3 में से 9 में 3 मिलाओ कितना होता 12 -12, 12 -12 इज 0, तो ये इसका आंसर क्या आया अपने को, एंड अगेन लास्ट टर्म x² + x -12, इन प्लेस ऑफ x वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 -12, 5 स्क्वायर कितना होता 25 + 5 -12, 25 + 5 कितना होता 30, 30 -12 नो 28 नॉट 18, कितना होता है इसका आंसर 18, तो इसकी प्लेस पे क्या आना है अपने को 18। अंडरस्टूड। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है अपने को ग्राफ, पहले पॉइंट्स को यहाँ बॉक्स में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आसानी होती करने के लिए। -4, 0 एक टर्म आ गया, दूसरा टर्म क्या है -2, -10 हो गया, फिर क्या है 0, -12 और 1, -10 और यहाँ पर 3, 0 और यहाँ पर 5, 18 हो गया यहाँ तक। चलिए अब जरा थोड़ा सा रफ करके ग्राफ बनाना पड़ता है अपने को, ये जो ग्राफ वर्क है अपना शीट में करना है, यहाँ पर तो अपना बोर्ड पे करेंगे। चलिए ग्राफ देखिए, सबसे पहले अपना y एक्सिस क्लियर, और यहाँ पर अपना कौन सा है x एक्सिस, यहाँ लिख लेंगे अपना y एक्सिस, यहाँ पर लिख लेंगे अपना x एक्सिस, यहाँ पर भी लिख लो y एक्सिस, यहाँ पर भी क्या आता है अपना x एक्सिस क्लियर। फिर सबसे बाद में क्या लिखना है अपने को स्केल, स्केल क्या लेना है x एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, पहले देख लेंगे क्या है, सो पहले लिख लो y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देख लीजिए पहले अपने क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है देख लो, x एक्सिस में 5 है ना, अपना ले सकते हैं 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इन ग्राफ में अपना अच्छे से सब्स्टिट्यूट करके लेना रहता। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज क्या है अपने पास -4, यहाँ पर सेम नंबर ले लो -1 -2 -3 -4 -5 -6, अभी थोड़े नंबर्स भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर देख लो बड़ा नंबर कौन सा है आपका 18, तो बॉक्सेस अपने पास नहीं रहते, तो प्लस इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पर x एक्सिस में 1 यूनिट ले लेना अपना, और यहाँ पर क्या लेना है अपने को 2 यूनिट्स लेना है, ठीक है, वहां पर 1 यूनिट, यहाँ पर
टू यूनिट्स यानी 2 का टेबल सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 और भी आते वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस में भी सब्स्टिट्यूट करो, -2 -4 -6 -10 -8 -10 -12 -14 -16, ये नंबर्स तो सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये जो लोकेशन पॉइंट्स अपने पास है वो पॉइंट्स को वहां पर लोकेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है अपनी, -4 पे 0, एक्स एक्सेस में -4, वाई एक्सेस में 0, एक्स एक्सेस में -4 यहाँ पर है ना, एक्स एक्सेस में -4 यहाँ पर, और वाई एक्सेस में 0 कहाँ पर है, यहीं पर है। तो इसकी एक पॉइंट कहाँ बनी अपनी, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गई। दूसरी पॉइंट -2 पे -10, -2 कहाँ पर है, यहाँ पर, -2 पे -10 कहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ पर बोले तो पॉइंट अब यहाँ पर बनी है। तो उसके बाद में तीसरी पॉइंट 0 पे -12, एक्स एक्सेस में 0 कहाँ है, यहाँ पर है, वाई एक्सेस में 12 कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर 12 और एक पॉइंट मिल गई। चलिए दूसरी पॉइंट कौन सी है, -1 पे -10, 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 10 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसके प्लेस हो गया, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गई। फिर उसके हमें और कौन सा है, 3 पे 0, 3 कहाँ पर, एक्स एक्सेस में यहाँ पर, 0 मतलब यहीं पॉइंट बनती है, ओके एक पॉइंट। और एक पॉइंट क्या है, 5 पे 18, 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, और 18 कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर है, पूरा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कुछ आती है आपकी पॉइंट आ गई। चलिए थोड़ा सा ग्राफ आ रहा है तो आप लोग ऊपर से बना लेना, यहाँ पे थोड़ा मिक्स मैच हो गया। चलिए अब जरा इसको अरेंज कर लेना, यहाँ से लाइन इसको अरेंज करें तो आप, ये आपका ग्राफ। कभी भी हमेशा याद रखो क्वेश्चन अपना क्या है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ड्रॉ तो कर दिया अपन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी, पहले सॉल्व करे, पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिए, ग्राफ में लोकेट कर दिए, बता दिए। अब मगर यहाँ पर क्या है, फाइंड इट्स जीरोस फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ में से जीरोस निकालना करते। जीरोस मतलब ये 0 नहीं होता, यहाँ पर जो अपना 0 होता वो 0 नहीं होता। जीरोस यानी आंसर, जीरोस यानी क्या होता अपना आंसर। आंसर जब कैसा मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो लाइन अब वहाँ कंस्ट्रक्ट करते, एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ पर टच हो रही लाइन वो देखना, एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ पर टच हो रही लाइन, -4 पे एक जगह टच हो रही और 3 पे एक जगह टच हो रही। तो ये जो इक्वेशन मिली अपने को उसके जीरोस है, वो कौन सा, -4 और 3 आपके जीरोस है। तो यहाँ पे लिखना देयरफॉर -4 एंड 3 आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपनी, x² + x - 12। अंडरस्टूड, क्लियर। पहले अपन ग्राफ का बॉक्स बना दिया, सब्स्टिट्यूट करें इसके ग्राफ में करें तो जहाँ पे एक्स एक्सिस में टच हुई वो अपने क्या हो गए, जीरोस। क्लियर। इसी के साथ 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आएंगे अपने 15 क्वेश्चन पे। चलिए, अंडरस्टूड ना। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ डाटा। जो नीचे डाटा है उसका क्या करना है अपने को, मीन फाइंड करना है। क्लास इंटरवल, ओके। और उसके अंदर आपका कौन सा है, फ्रीक्वेंसी। डाटा रिप्लेस करना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, again 60 to 70 is the last term, okay. And frequencies are 11, 14, 15, 20, 15, 13 and last 12. It is your question. Find the arithmetic mean of the data. Okay. चलिए सोल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल जो बॉक्स है अपना उसको क्या करेंगे, वर्टिकल में रिप्लेस करेंगे। वर्टिकल में रिप्लेस करना है यानी
तो जो हॉरिजॉन्टल में उसको क्या लिखना है अपने को, वर्टिकल में लिखना है, ठीक है। पहले तो 2 बॉक्सेस लिखो, आगे का देखेंगे। क्लास इंटरवल का शॉर्ट CI लिख लो, क्या क्या वैल्यू से बोलो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, last term is 60 to 70. Frequencies are 11. Frequency means Fi. Okay, 11, 14, 15, 20, 25 नहीं, 15, 15, 13 and last term is 12. Okay, now the extra columns to be used. यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन के 3 फॉर्मूले से थे अपने पास, एक बार बता ही देता हूँ आपको। एक फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा Fi xi बाय सिग्मा Fi, एक फॉर्मूला था। और एक फॉर्मूला होता है आपका A प्लस सिग्मा Fi di बाई सिग्मा Fi, और एक फॉर्मूला रहता है आपका सिग्मा Fi ui बाई सिग्मा Fi इंटू h। 3 फॉर्मूले से आप लोग तीनों में से कौन सा ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और इजीली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूले में क्या क्या होना है अपने को। पहले तो सबसे पहले xi निकालना पड़ता है। xi मीन्स क्या होता है, मतलब आपकी जो क्लास इंटरवल है वो जो वैल्यूज को प्लस करना और उसका हाफ कर देना, यानी 0 + 10 कितना होता है, 10 का हाफ कितना होता है, 5, सिंपल 5। यहाँ पर 10 + 20 कितना होता है, 30, 30 का हाफ कितना होता है, 15। और यहाँ पर 20 + 30 कितना होता है, 50, 50 का हाफ कितना होता है। यहाँ पर आप नंबर देखो तो सीरीज में देखो, 5, 5 के अंदर 10, 10 के अंदर 25, 25 के अंदर 35, 35 के अंदर 45 के अंदर 55, 55 के बाद में 65 के अंदर हो गया। xi मिल गया अपने को, है ना, सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स थे और 8 टर्म्स है क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया अपने पास, थोड़ा सीरीज में लिख लो। 55 और ये 65 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को मालूम, थोड़ा सा ui का फॉर्मूला। ui का फॉर्मूला xi माइनस a बाई h। अब यहाँ पर देखो, इसमें से अपनी वैल्यू कौन सी भी एक वैल्यू आप अज्यूम कर लो, मीन है समझ के, कौन सी भी एक वैल्यू ले लेंगे अपन, जैसे कि 35 क्या मान लेंगे अपन, एक। आप कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बॉटम टॉप कौन सी वैल्यू, आप सेंटर में लेते क्या इजीली आंसर आता आपका। तो ये वैल्यू क्या अपना क्या मान लेंगे, 35। तो इसका शॉर्टकट पे क्या होता है, तो जो 35 अपन ले रहे हैं उसको क्या लिख देना अपन, 0 हो गया। और उसको अगर सॉल्विंग करते गए तो ऊपर जाते जाओ -1 -2 -3, या नीचे जाते जाओ +1 +2 +3। ओके, अगर उसका प्रैक्टिकल आंसर बताओ, यहाँ पर पीछे बता देता हूँ मैं, एक बार देख लो। यहाँ पर क्या है अपना xi कितना है तो आपका, यहाँ पर xi मतलब कितना है, पहले तो आपका 5, ठीक है, 5 यहाँ पर हो गया माइनस, और a मतलब कितना लिया अपना 35 माइनस 35 बाई h मतलब क्या होता है मालूम आपका, ये जो h दिख रहा है ना यहाँ पर फॉर्मूले में, h का मतलब आपको दोनों का मेरा डिफरेंस, 0 में 10 मिला कितने होते 10, तो डिफरेंस कितना है इसका 10 का है। तो 35 में से 5 निकालो कितने बचते 30 बचते, 30 माइनस 30 बाई 10, 0 0 कैंसिल, यानी 10 माइनस 10, 10 3 जा 30। तो इसका आंसर क्या है -3, तो इसलिए अपना डायरेक्टली -3 डाल दिया। इसका भी आंसर क्या था -2 -1 0 1 2 3। क्लियर यहाँ तक। चलिए अभी थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना पड़ता है अपने fi और ui। fi ui यानी fi की लाइन कौन सी है, ये वाली है, ui की लाइन कौन सी है, ये वाली है, यानी रो, ui का रो और fi का रो। अब आप दोनों रोज को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33 -33 हो गया। फिर क्या में 14 2 जा 28 -28 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ओके। 15 1 जा -15 हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस है। फिर क्या में क्या है 20 0 जा 0 हो गया, है ना। तो 15 1 जा 15 हो गया। चलिए 13 2 जा 26 नॉट 24 26, 13 2 जा कितना होता है आपका 26। फिर 12 3 जा 36 हो गया, 12 3 जा 36। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस वाले टर्म्स को अलग प्लस करो, प्लस वाले टर्म्स को अलग प्लस करो, कितना होता बोलो, एक मिनट। चलिए -33 28 15, 5 प्लस कितना हो गया इन्हें 13, 13 प्लस 3 कितना है 16 का 6 कैरी 1 4 5 6 7 76। ये माइनस वाले टर्म्स हो गए 76। अब ये प्लस वाले टर्म्स देख लो, 15 है 26 है 36 है, 15 26 36 प्लस करो, 6 + 6 12, 12 + 7 कितना हो गया 12 + 5
17 का 7 कैरी 1, 2 4 4 प्लस 3 7 77 हो गया 77। तो आंसर लास्ट में आया क्या है इसका 77। 76 माइनस में है और ये प्लस में क्या है अपने को 77। 77 में 76 निकालो कितना बचते 1। आंसर क्या है इसका 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपना इसका आंसर टोटली इसका आंसर क्या है 1 यानी सिग्मा xi और ui का आंसर क्या है आपका 1 और सिग्मा fi यानी ये पूरे वैल्यूज को प्लस करना है अपने को। ठीक है ये पूरे वैल्यूज को प्लस करते कितना आता है देखिए 11 प्लस 14 10 20 30 40 50 60 70 80 80 तो ये नंबर हो गया छोटा सा लिख लो साइड में ऊपर से नंबर्स प्लस करो 1 प्लस 4 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 3 18 18 प्लस 2 20 80 प्लस 20 कितना हो गया 100 यानी सिग्मा fi कितना आ रहा है आपका 100 ये आगे वैल्यू 100। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है अपने को फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है अपना देखिए मीन का a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। क्लियर यहाँ तक। चलिए a कितना है आपका वो भी नहीं लिखा हुआ a कितना है बोलो यहाँ पर से a क्या लिया था बोला 35 यहाँ लिख देंगे 35 और h कितना है अपना h कितना है यहाँ पे से 10 मिला था ना h कितना है 10। तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे चलो बोलो a कितना है 35 प्लस सिग्मा fi ui कितना 1 नीचे आना सिग्मा fi ui का आंसर 1 और सिग्मा fi कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या आंसर 10 हो गया 10 1 जा 10 10 जा 100 तो 35 प्लस 1 बाई 10 1 बाई 10 वी कैन राइट एज 0.1 है ना 1 बाई 10 मतलब कितना होता है 0.1 35 में 0.1 मिला तो 35.1 सो द मीन ऑफ द डाटा इज 35.1 ओके अंडरस्टूड ना चलिए मीन हो गया। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम। जी सर Now repeat the question. Construct a triangle ABC with AB is equal to 5.6 centimeter and BC is equal to 7.2 centimeter and CA is equal to 4.8 centimeter. It is the half question. ओके तो यहाँ पर पहले अपने लोग क्या करेंगे छोटा सा पहले कंस्ट्रक्शन जो पहला कंस्ट्रक्शन है पहले वो कर लेंगे उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टिंग आंसर है कौन सा आंसर कंस्ट्रक्टिंग आंसर है। तो सॉल्विंग करने के लिए कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना होगा अपने को रफ फिगर और पेज फिगर। पहले तो मैं रफ फिगर बना के रखा हूँ आप लोगों को ये जो आपका रफ फिगर है पहले एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें क्या नाम है पहला AB और C। AB कितना है आपका 5.6 सेंटीमीटर यहाँ पर कितना है 5.6 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है आपका BC 7.2 सेंटीमीटर BC कितना है आपका 7.2 सेंटीमीटर और CA कितना आना है 4.8 सेंटीमीटर आना है। पहले तो ट्रायंगल बनाना है ट्रायंगल बना दिया हमें क्या करना है और एक ट्रायंगल बनाना है इसके अंदर और एक ट्रायंगल बनाना है जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहना है उसके 3/5 के बराबर रहना 3/5 फ्रैक्शंस के बराबर रहना। तो यहाँ पर हमने एक रे लेना पड़ता है जिसका नाम है पहले एक से
फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पॉइंट्स देते, जितना फ्रैक्शन है अपने पीछे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कितना 5 है, तो यहाँ 5 पॉइंट्स देना था मुझे, A1 A2 और A3 A4 एंड A5 पॉइंट्स देना था। फिर पॉइंट से लास्ट पॉइंट से जिसको ज्वाइन करो, फिर ऊपर फ्रैक्शन क्या है 3 है, तो 3 से ऊपर ज्वाइन करो, फिर यहाँ पर सेंटर लेके एक पॉइंट पर इसको ज्वाइन करो, यहाँ पर अंदर का सेंटर ट्रायंगल का कंसेप्ट। ये था अपना रफ फिगर। इसको कैलकुलेटर को अपना प्रोडक्ट का यूज करते हुए, कंपास को यूज करते हुए, स्केल रूलर यूज करते हुए अपने को कंस्ट्रक्ट करना होगा। अभी यहाँ पर तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, मैं आपको फिगर बताता हूँ फिगर कैसा बनाना है और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। ओके, सो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आर स्टेप 1। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल। सो डायरेक्टली लिख दो आप construct triangle ABC in which AB is equals to 5.6 centimeter and BC is equals to 7.2 centimeter and CA is equals to 4.8 centimeter। फर्स्ट स्टेप हो गया अपना कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कंटिन्यूटर, ये आपका कंस्ट्रक्टिंग फिगर। पहले ट्रायंगल बनाना है जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली ऐसा होगा, पहले लाइन सेगमेंट, फिर इसको सेंटर रख के यहाँ पर एक आर्क बन, फिर यहाँ पर एक सेंटर रख के इसको एक आर्क बनती है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाती है, इसको ज्वाइन करें, यहाँ से इसको ज्वाइन करें, इसका नाम बी और यहाँ पर सी सी मतलब कितना है देखिए, ए बी 5.6 सेंटीमीटर, बी सी 7.2 सेंटीमीटर और सी ए 4.8 सेंटीमीटर। ये तो अपना फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप, यहाँ से मेनली स्टेप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये तो नॉर्मली हम बना सकते हैं नॉर्मल ट्रायंगल का। फिर टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेटल ट्रायंगल और अपना एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें से कौन सा भी ट्रायंगल करता है अपना ट्रायंगल बना सकते हैं। मेन स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट है। आपने क्या बनाना है, सिमिलर ट्रायंगल उसके बराबर बनाना है। तो पहले यहाँ पे अपने फ्रैक्शन में 5 पॉइंट्स है, अगर 5 दिख रहा है ना तो 5 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स देने के लिए एक रे बनाना रहता है, इसके यहाँ से रे ऐसा जब रे बना रहे अपना, तो रे इसके अपोजिट होना, किसके ये वर्टेक्स सी जो दिख रहा है उसके अपोजिट में रे होना, और किसके बराबर रहना है, ए बी के अपोजिट में रहना होगा। तो यहाँ पर उसकी पॉइंट देखिए, ड्रॉ ए रे ए एक्स, इसको नाम देंगे क्या बोला, एक्स देंगे, आकाश में क्या नाम देंगे इसको, एक्स। तो ए एक्स अपोजिट ऑफ वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स सी बनाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा ही बना रहता है, गलत हो जाता है, इसलिए वर्टेक्स अपोजिट के अपोजिट बनाना, सी वर्टेक्स के अपोजिट बनाना है ए एक्स। हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है अपने को, थर्ड स्टेप, स्टेप 3 में क्या करना है, देखिए पॉइंट्स लेना है। यहाँ फ्रैक्शन जब अपना मेन है, ये फ्रैक्शन लेना मेन सबसे मेन क्वेश्चन में, यहाँ पर फ्रैक्शन मेन लगा क्या है, 3/5 1/2 आ सकता है, 3 4/2 आ सकता है, उसके हिसाब से मुझे सोल्यूशन बनाना है। यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थोड़ा अलग मेथड रहता है, यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिंपल मेथड ही है। नीचे 5 है तो इसलिए अपना कितने पॉइंट्स लेना रहता है, हमको 5 पॉइंट्स लेना है। तो यहाँ पर लिखना होगा, लोकेट 5 पॉइंट्स ऑन AX such that AX A1 A2 A3 A4 and A5 such that, और वही पॉइंट्स कैसे लेना था आपको, इक्वल डिस्टेंस पे जाना है, such that A1 is equals to A1, A2 is equals to A2, A3 is equals to A3, A4 is equals to A4 and A5। लोकेट करेंगे यहाँ पर, देखो फर्स्ट पॉइंट आप लोग स्केल से अच्छा मेजरमेंट करते हुए करना है। ये रस्सी का बना रहा था आपका, फिर बना रहा था A1 A2 A3 A4 एंड A5। हो गया अपने पॉइंट्स। तो थोड़ा सा मेरे को रफ करना होगा क्वेश्चन, यहाँ पर पॉइंट्स थोड़ा सा और इंक्लूड करना है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में अपना इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा था, देखिए वो नंबर इंपॉर्टेंट है, 3/5। ये नंबर याद रखिए, तो नंबर के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप 4 में हमें क्या करना है, देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है अपना
5 5 डिनोमिनेटर क्या है 5 तो यहाँ पर A5 कहाँ पर है नीचे सेंटर लास्ट बॉटम में तो A5 से क्या करना पड़ता है B को ज्वाइन करना है तो यहाँ पर लिखना ज्वाइन A5 B क्या करना है हमने तो A5 to B ज्वाइन क्या करना है A5 to B A5 से किसको ज्वाइन करना है B को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर दिया हमें फिर क्या करना है वही स्टेप है ड्रॉ ए लाइन ड्रॉ करना है कैसा देखिए बता देता हूँ पहले उसके आगे कंसीडर करेंगे लाइन ड्रॉ करना था उन्हें कैसा हमारा A5 तो ज्वाइन कर दिया अपना अब दूसरा न्यूमरेटर क्या है अपना 3 ज्वाइन हो गया आगे न्यूमरेटर ज्वाइन करना है A3 कहाँ पर है यहाँ है ना ये पॉइंट से हमने क्या करना है यहाँ पर ये लाइन को ज्वाइन करना था AB और AB पे ऐसा ज्वाइन करना कि ये लाइन से ये लाइन दोनों पैरेलल है ना पैरेलल बोलते तो कैसा आता है देखिए पॉइंट से यहाँ पर लिखेंगे अपना पैरेलल बोलते ऐसा कुछ आता है पैरेलल लाइंस ठीक है या फिर थोड़ा सा क्रॉस अपना कंस्ट्रक्शन करके आराम से बराबर आते हैं पॉइंट्स तो ये A3 से इसको ज्वाइन करूँगा AB तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा अपने तो इसको एक नाम दे देंगे क्या दे सकते हो बोलिए A डैश है ना A डैश नाम दे देंगे फिर ये पॉइंट भी यहाँ पर लिखो क्या लिखना है ड्रॉ लाइन एक लाइन ड्रॉ करेगा अपना कहाँ से ड्रॉ करें A3 मैं लिखना फ्रॉम A3 पैरेलल टू पैरेलल करना लाइन से इसका है ना पैरेलल टू किसके पैरेलल है हमने A5 से B के क्या लिखना A5B इंटरसेक्टिंग AB को इंटरसेक्ट कर लेना चाहिए AB की कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे इंटरसेक्टिंग AB एट A डैश कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पे लिख सकते A डैश पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ से लिए थे हम ऊपर लिख लेते AB को कट करेंगे लाइन AB को कहाँ पे कट करेंगे A डैश पे देखिए एक पॉइंट होगा सेम पॉइंट डायरेक्टली करना था यहाँ पर जो कट हुई ना इसको से इसके पैरेलल लेके लाइन यहाँ पर ज्वाइन करना था यहाँ पर ज्वाइन किया तो यहाँ पर भी पॉइंट बन गया अपनी इसको नाम दे दिया अपना C डैश ठीक है C डैश नाम दे दिया तो यहाँ पर क्या बनता देखिए सॉरी यहाँ पर भी सेम पॉइंट स्टेप 5 ठीक है स्टेप 5 में क्या करना है ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम मास्टर डैश वन A डैश है ना A डैश पैरेलल टू कहाँ पर पैरेलल टू है BC इसके पैरेलल है BC पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग AC एट C डैश कहाँ पर इंटरसेक्ट करी उन्होंने C डैश पहले अपना ट्रायंगल बनाए थे बड़ा वाला फिर उसके अंदर और एक ट्रायंगल बन गया अपना क्वेश्चन में भी अपने क्या बोला था सिंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला था जिसका फ्रैक्शन क्या रहने वाला है करस्पॉन्डिंग सेट 3/5 तो 3/5 के साथ अपना ट्रायंगल बना जिसका नाम क्या है C डैश A डैश या फिर A C डैश A डैश को दे सकते हैं यहाँ पे लिखो लास्ट स्टेप अपना therefore our required singular triangle is ट्रायंगल क्या है नाम उसका A डैश और C डैश अंडरस्टूड दैट्स हाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम नाउ कम टू द नेक्स्ट खेलेंगे सर now you are solving 17 question of quadratic equation sorry coordinate geometry का क्वेश्चन प्रॉब्लम है
The three vertices of a parallelogram ABCD are A is equals to -1, -2, B is equals to 4, -1, and C is equals to 6, 3. Then find the coordinates of vertex D and find the area of the parallelogram ABCD. So अपना सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे. इसमें आपका आंसर इजीली हो जाता है. पैरेललोग्राम बना लें तो अपना ये चलेगा. पैरेललोग्राम बना लें तो मान लो A B C पॉइंट D. ए पॉइंट क्या है अपने पास, देखिए -1, -2. बी पॉइंट क्या है 4, -1. और सी पॉइंट क्या है 6, 3. और डी पॉइंट अपने पास नहीं है ना. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी. डी के वर्टेक्स नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको x, y. या फिर स्टार्ट में हम लोग a, b रख लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है ना x, y रखे तो कंफ्यूजन हो जाता है इसीलिए. तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो भी डायगोनल्स है, हमेशा देखो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स रहते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर perpendicular bisector to each other. ठीक है, कभी भी पैरेललोग्राम बना तो ये पॉइंट से ये पॉइंट डायगोनल है नहीं, बी पॉइंट से डी पॉइंट क्या है, डायगोनल है. जो एक डायगोनल दूसरी डायगोनल क्या होती है, एक दूसरे से बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर करती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है. यहाँ पर जब बाइसेक्ट करती है कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल. उसके साथ साथ यहाँ से लेंगे, यहाँ से जो लाइन अपना लेते हैं डायगोनल में, यहाँ से भी लेके जो लाइन लेते हैं तो यहाँ पर मिड पॉइंट बने. क्या बन जाएंगे, मिड पॉइंट. तो इसकी ये लाइन की मिड पॉइंट और एसी की मिड पॉइंट दोनों क्या रहते हैं, दूसरे के इक्वल. तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा. पहले तो अपना एसी मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीसी. मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीसी. मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी. ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है अपना, देखिए x1 प्लस क्या होता है x2/2 x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2. ये क्या इसका फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट. ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है. तो पहले हमें क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालना है और मिड पॉइंट ऑफ बीसी निकालना है, और वो दोनों क्या करना है, एक दूसरे के इक्वल रखना है, क्योंकि फिगर कौन सा है, पैरेललोग्राम. इसकी वजह से हम लोग क्या करना है, हमको इक्वल रखना है. तो थोड़ा सा रफ कर दें, यहाँ पर मॉडल नहीं करना. सी ना, डी क्या है -1, -2, सी क्या है आपका 6, 3. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है आपका, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. x1 कितना है आपका -1 प्लस x2 कितना है आपका 6/2 y1 कितना है आपका y1, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y1. y1 कितना है आपका -2 प्लस y2 कितना है आपका 3/2 हो गया. ठीक है, 6 में 7 निकालो, 5/2 और ये कितना 3 में से 2 निकाल दो 1 और ये 1/2. एक पॉइंट तो मिल गया, मिड पॉइंट ऑफ एसी मिल गया हमको. यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, मिड पॉइंट ऑफ एसी मिल गया. अभी क्या करना है मुझे, मिड पॉइंट ऑफ बीसी. ये क्या है आपका, देखिए जरा, डी आपका है 4, -1 और डी क्या है पॉइंट आपका a, b. इसका भी फ्रेंड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ बीसी. बीसी का मिड पॉइंट क्या है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. x1 कितना है आपका 4 प्लस x2 कितना है 3 है, अपना कितना है वो 4 है. 4 डी कितना है आपका 4, सॉरी डी है a, b है. तो डी कितना, डी आपका क्या क्या a, b. तो 4 प्लस a/2 y1 कितना है आपका -1 प्लस y2 कितना है आपका b/2. ठीक है, अब यहाँ पर क्या अपने वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है.
यहाँ पर इसको प्लस भी नहीं कर सकते ना इसको माइनस कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना पड़ता है अपने को, ये जो पहला फ्रैक्शन है 5/2 इसके इक्वल रख दो, ये दूसरा फ्रैक्शन है 1/2 इसके इक्वल रख दो। यहाँ पर लिखना है AC = BD, तो AC क्या आपका 4 + A/2 प्लस सॉरी = 5/2। इसके बाद में यहाँ पर देखिए -1 + B/2 = 1/2। यहाँ पर क्या करें हमारा ये वाले पॉइंट इसके इक्वल दे दिए और ये वाली पॉइंट इसके इक्वल दे दिए, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना मिड पॉइंट्स, इसलिए दे दिया। अब यहाँ पर 2 to कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 4 + A = 5 प्लस 4 कराया क्या होता है, तो A = 5 - 4, A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, तो A की वैल्यू क्या है आपकी 1। और यहाँ पर देखिए ये 2 to कैंसिल, डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो गए, ये -1 बचा के क्या होता है अपना +1, तो B = 1 + 1, B की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। तो आपकी पॉइंट जो डी थी देयरफॉर आपकी जो पॉइंट थी डी वो क्या आ गई अपने यहाँ से 1, 2। Understood? We find the vertex D and also we have to find the area of the parallelogram AC. Okay? चलिए तो यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे पहले से। डी की पॉइंट क्या है अपने को 1, 2। तो अपना अपना उसका एरिया तो मिल गया, पैरेलल खाली एरिया फाइंड कर दो, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। ये आपका बेस हो गया और ये आपकी हाइट समझ लो, ठीक है। हाइट समझे तो अपने क्या करना है, पहले बेस निकालना है, ये दोनों का डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला करना है, फिर ये दोनों का डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 कितना है आपका, देखिए यहाँ पर पहला ये कर लीजिए AB, x1 कितना है आपका -1 माइनस ऑफ x2 कितना है आपका, x2 कितना है आपका 4x, 4 -1 हो गया 5 प्लस यहाँ पर y2 कितना है आपका -1 और y1 कितना है आपका -2, माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए इसके आगे ये 4 + 1 5 स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस यहाँ पर देखिए 2 में से 1 निकाल दो 1 बचा है ना, तो 1 स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो ये √26 हो गया। तो ये कितना मिला हमने को 1 मिल गया, A भी मिल गया है ना। आपको क्या फाइंड करना है BC, BC कितना है आपका, यहाँ पे सेम फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 कितना है आपका, x2 कितना है देखिए इसमें BC फाइंड करना है, तो x2 कितना है आपका 6 माइनस x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 3 माइनस y1 कितना है -1 y1 -1 यानी प्लस 1 हो गया, ठीक है। क्या हमने 6 में से 2 निकाल 4 निकाल दो 2 स्क्वायर प्लस और ये 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया, 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, BC मिल गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है इसका √26 और हाइट कितनी है इसकी √20, तो यहाँ पर लिखो अंडर बेस इनटू हाइट, बेस कितना है इसका √26 मल्टीप्लाई बाय √20, therefore √2 6 are divided by 10 therefore 520. Okay, this is the answer. Okay, thank you.